Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Class as the topic of internal control had completed and the next topic is corporate social responsibility that we will discuss in today's lecture. Concept: business decision making linked with ethical values, compliance with the law, respect for people, communities and the environment. Students, first we need to know about some aspects of corporate social responsibility. As we know that the survival of business is based on decision making and decision making linked with ethical values. Ethical values are those values that people use to determine what is right and wrong in different random situations. अब ethical values क्या हैं? In which you may differentiate what is right or wrong, what is good or bad for you. Class, there are many ethical values like justice, honesty, empathy, compassion, respect and responsibility. Yani, while conducting any business activity, you must keep these points in your mind to doing business ethically. The next is compliance with the law. Compliance means conforming to a rule such as specification, policy, standard or law. Regulatory compliance describes the goal that organizations aspire to achieve in their efforts to ensure that they are aware of and take steps to comply with relevant laws, policies and regulations. Class companies set the rules and regulations and provide SOPs, means standard operating procedures, to run the business and to achieve the organizational goals. अगर कंपनी ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहे हैं, SOPs को तमाम स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली योर बिजनेस में सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड and this will lead to the positive impact on your business profitability as well as society at large. Okay class, the next is respect for people, communities and the environment. Respect to environmental conservation, hiring and relations with employees and respect for people. Definitely, company management has responsible for maintain fair relationship with its employees. अगर कंपनी मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर होगी, उनको रिस्पेक्ट देगी, तो एम्प्लॉयज़ भी इन रिटर्न पॉजिटिव रिजल्ट देंगे कंपनी को. इसी तरह क्लास, कंपनी एंड सोसाइटी दोनों के इन्वायरमेंट पर फोकस करना होता है. कोई भी ऐसी एक्टिविटी को फॉलो ना किया जाए जिससे कंपनी मैनेजमेंट एंड सोसाइटी के इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो, जैसे कि अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन और अनलॉफुल एक्टिविटीज से अवॉइड करना होता है. रिस्पेक्ट फॉर पीपल पर फोकस करना है क्लास. क्लाइंट्स को उनकी डिमांड्स और वांट्स के मुताबिक सप्लाई करनी होती है. एंड व्हेन बिजनेस प्रोवाइड दिस मटेरियल अकॉर्डिंग टू नीड्स, वांट्स एंड डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी प्रोडक्ट, देन कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड with your company. Okay class, definition. Lord Holmes and Richard West define CSR as corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce as well as of the local community and society at large. Corporate social responsibility is how companies manage their business processes to produce an overall positive impact on society. Students, corporate social responsibility is a company commitment to manage the social environmental effects of its operations responsibly and in line with public expectations. क्लास, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है.
क्लास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी होती है कंपनी के डिसीजन मेकर्स की कि वो किस तरह से अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करेंगे। क्लास जब भी बिजनेस की फॉर्मेशन की जाती है तो वो सोसाइटी पर डिपेंड करता है बिजनेस, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, मैन पावर चाहिए होती है, मशीनरी चाहिए होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अब ये सारी चीज़ें उसको कहाँ से मिलती हैं? डेफिनेटली सोसाइटी से ही मिलती हैं। तो जो चीज़ें वो सोसाइटी से ले रहा होता है, इन लिeu ऑफ देम उसे भी सोसाइटी को कुछ देना पड़ेगा। तो वो क्या चीज़ें दे सकता है सोसाइटी को? वो सोसाइटी को बेटरमेंट कर सकता है, वेलफेयर कर सकता है, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर सकता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है क्लास? The American and European concepts. American businesses mostly think CSR is only about giving money for worthy causes. Students, according to American business class, they said provide money for worthy cause. मीन्स जब कोई वर्दी कॉज जैसा कि अर्थक्वेक, फ्लड या डिजास्टर्स वगैरह होंगे तो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो CSR में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकन अप्रोच कहती है कि ये CSR है। अब यूरोपियन क्या कहती है? यूरोपियंस थिंक CSR इज अ टूल फॉर प्रमोटिंग बिजनेस, ट्रीट द सोसाइटी वेल सो दैट सोसाइटी कैन बाय योर प्रोडक्ट्स, do more CSR when times are bad. Class, according to Europeans, they said that if you want to promote your business and if you want that your products sell more and more, then you need to contribute in corporate social responsibility. Okay class? According to trusteeship theory, companies do not have any owners, they simply belong to the society. Shareholders are providers of funds but do not own the specific assets of the company. The directors hold the assets of a company as trustees and their trusteeship responsibility is to entire society, not just the shareholder. Company profit are only one reason for its existence. Serving the community in which it operates is an equally important other reason. क्लास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब बिजनेस फॉर्मेशन की जाती है, जब बिजनेस को एस्टेब्लिश किया जाता है तो वो सोसाइटी पर बेस करता है। कंपनी के एक्चुअल में कोई भी ओनर नहीं होते। अगर शेयर होल्डर की बात करें क्लास, तो वो सिर्फ कंपनीज को फंड्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, लेकिन वो कंपनी के स्पेसिफिक एसेट्स को ओन नहीं करते। अब अगर एसेट्स की प्रोटेक्शन के लिए कौन काम कर रहा होता है? कंपनी के डायरेक्टर्स काम कर रहे होते हैं एज अ ट्रस्टी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि वो एंटायर सोसाइटी को प्रोटेक्ट करें, ना कि सिर्फ शेयर होल्डर को। अगर तो कंपनी के डायरेक्टर सिर्फ शेयर होल्डर की वर्थ के लिए वर्कआउट करेंगे तो दूसरी साइड पर क्लास जो स्टेक होल्डर होंगे उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाएगा, जिससे कंपनी जो एंटायर कंपनी होगी और सोसाइटी दोनों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। एंड क्लास, बिजनेस सर्वाइवल इज बेस्ड ऑन 2 steps. First step is company profit is the main reason for its existence. यानी कि कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो डेफिनेटली वो एग्जिस्ट करेगी मार्केट में। और सेकंड स्टेप क्या है? इस सेकंड स्टेप and the second reason is for business survival for a long time period is to serve for the community in which company operate, कि वो उस कम्युनिटी के लिए सर्व करे जिस कम्युनिटी में वो अपने बिजनेस को रन कर रही है। ओके क्लास? The next is historical perspective. In fact, CSR came much after business ethics. Business have learned that sharing only profit does not give enough profit. CSR can actually improve their profitability and
sustainability of their ventures. Class, according to historical approach, corporate social responsibility means doing business ethically and avoiding from immoral values. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि बिजनेस का मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, और अगर वो नाजायज़ तरीके से मुनाफा कमा भी लेती है तो वो बिजनेस नहीं है. स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, businesses can improve their profitability ratio by shaping their business with respect to corporate social responsibility. It also may survive for a long time period due to contribute in corporate social responsibility. Okay class. The next is scope of CSR. Class, scope of CSR is based on 3 steps. The first step is philanthropy, second doing business responsibly, the third is being a good citizen. First step is philanthropy, in which include financial donation, setting, running or supporting government efforts for social welfare. The second step, doing business responsibly, which consists of integrity, fair treatment and protection. And the third scope is being a good citizen, in which include compliance with law, investment, concern for environment. Philanthropy refers to a charitable acts or other good works that help others or society as a whole. Philanthropy can include donating money to a worthy cause or volunteering time, effort, or other form of altruism. Philanthropist is someone who donates their money, experience, time, talent, or skills to help others and create a better world. Class, philanthropy means donate money to help others or for the welfare of our society. Means making financial donation towards worthy cause, running or supporting socially desirable organizations, and assisting the government effort towards social welfare. Class, philanthropy means कंपनी अपनी सोसाइटी और गवर्नमेंट की हेल्प के लिए जब डोनेशन प्रोवाइड करेगी एज अ चैरिटी या किसी भी फलाह बहबूद के लिए कंट्रीब्यूट करे, यानी कंपनी प्लेइंग अ वाइटल रोल इन आवर सोसाइटी एज अ फिलैंथ्रोपी, यानी कि वो फिर फिलैंथ्रोपी में आ जाएगा. अब वो पर्सन जो कि अपने स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज या मनी को डोनेट करे जस्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ बेटरमेंट वर्ल्ड, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं. श्योर क्लास. द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डोनेशन. Giving financial donation toward the cause or deserving persons is the commonest and perhaps the simplest form of philanthropy. Class, the first step under philanthropy is financial donation. Students, previous slide में philanthropy की हमने ओवरऑल बात की थी कि क्या होती है. अब वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि किन तरह कंपनीज सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सकती हैं. पहला स्टेप ये था फाइनेंशियल डोनेशन. फाइनेंशियल डोनेशन के थ्रू जब कंपनी डोनेट करे मनी, जैसे कि फ्लड और डिजास्टर वगैरह, या किसी डिजर्विंग पर्सन की हेल्प करे. अब यहाँ पर बात करते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू डोनेट समथिंग टू समवन, देन फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड. अब वो पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? द फर्स्ट वन इज due investigation should be made before parting with money and good to ensure that these will be used rightfully by the really intended people. पहला स्टेप ये है कि जब आपने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है या हैंड ओवर करना है तो सबसे पहले वेरीफाई कर लेना है कि ये अमाउंट किस पर्पस के लिए यूज़ की जाएगी, क्या इसका इस्तेमाल सही वजह के लिए किया जाएगा और ज़रूरतमंद यानी कि नीडी पर्सन के लिए ही डोनेट की जा रही है.
Okay. The second is companies should not wait for disasters to take place before they swing into action. They should preferably maintain a regular philanthropy program which keep helping communities on an ongoing basis. और सेकंड में क्लास ये कहा गया है कि कंपनी को चाहिए कि वो फिलैंथ्रोपी प्रोग्राम को कंटिन्यूइंग बेस पर मेंटेन करे, ना कि कंपनी इस चीज़ का वेट करे कि डोनेशन किसी डिजास्टर या अदर स्वेयर इंसिडेंट जब होगा तब ही की जाएगी। तो ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंपनी टू मेंटेन फिलैंथ्रोपी प्रोग्राम ऑन ऑनगोइंग बेसिस टू बेटर सर्व इन द सोसाइटी। Okay. The third step under philanthropy is supporting socially desirable organization. It is often helpful and efficient to channel financial donation through socially desirable organizations like ED Foundation, Shaukat Khanum Hospitals, charitable trusts, etc. A company can set up such organizations, help in running them, or support them from a distance through irregular donations. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात की गई है कि कंपनीज सोशली डिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी फाइनेंशियल डोनेशन प्रोवाइड कर सकती हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन है, शौकत खानम हॉस्पिटल्स वगैरह हैं। अगर इनमें डोनेशन प्रोवाइड की जाए तो सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ओके। अब क्लास, अ नंबर ऑफ कंपनीज हैव set up social units like welfare trusts, educational institute and hospitals that benefit not only their own employees but also the entire community around them. अब यहाँ क्लास, जैसा कि एनरॉन के बहुत सारे सोशल यूनिट्स हैं जिसमें हॉस्पिटल्स वगैरह आ जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह शामिल हैं, जिसका बेनिफिट ना सिर्फ कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को होता है बल्कि सोसाइटी भी इससे अफादा हासिल करती है। ठीक है। In class, the third step under philanthropy is supporting governmental efforts for social welfare. Government runs number of social welfare organizations. However, the demand for these services is so large that government alone cannot meet it. Companies can extend a helping hand to the government in running or maintaining such social welfare units, including schools, dispensaries, and etc. Frequently, government runs health programs like vaccination. Companies can provide much needed resources for making these programs a success. Class, there are so many welfare institutes established under government of Pakistan to help for deserving or needy people. अब उन इंस्टीट्यूट को चलाना, वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करना अकेले हमारे गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है क्लास। तो जो वेल एस्टेब्लिश कॉर्पोरेशंस हैं, उन अदारों को, उन वेलफेयर यूनिट्स को, जैसे स्कूल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फाउंडेशंस हैं और सपोर्टिंग प्रोग्राम्स हैं, इनको डोनेशन प्रोवाइड करके गवर्नमेंट के साथ एज अ हेल्पिंग हैंड काम कर सकती हैं। अब अगर एग्जांपल ले लें, जैसे कि कंपनीज उन वेलफेयर यूनिट्स को कमर्शलाइज करवाए सपोर्टिंग पर्पस के लिए थ्रू एडवर्टीजमेंट, लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करें पोलियो और वैक्सीनेशन के लिए, इसी तरह इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखने के लिए और हार्मफुल प्रोडक्ट्स से सेफ रखने के लिए सोसाइटी को मोटिवेट करें एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ठीक है ना क्लास, दिस इज आल्सो अ की पॉइंट्स फॉर कंपनीज टू हेल्प विद गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर सोशल वेलफेयर। ओके। Class, the second step of CSR is doing business responsibly. Doing business responsibly includes protecting the interests of all stakeholders, being honest in all dealings and according
fair treatment to all concerned within and outside an organization. This may appear to be simply an extension of observing business ethics, but includes a bit more than the applications of ethical principles to companies' internal procedures and processes. It covers a company's efforts towards improving the quality of life of the people associated with or existing around a company. स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप ऑफ CSR में ये कहा गया है, डूइंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबली मीन्स प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस विद कंसिडरेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज, इन्वायरमेंटल एंड कम्युनिटी गोल्स। ठीक है ना, यानी कि अडोप्ट अ बिजनेस कोड ऑफ एथिक्स, यानी कि जो भी एथिकल वैल्यूज हैं उनको अडोप्ट करना है। फॉलो अ वर्क जो है इसको हम कह सकते हैं कि फॉलो अ वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ और सेफ्टी के लिए इनिशियली बेसिस पर अरेंजमेंट्स करना। एंड क्लास, डोंट ग्रीन वॉश योर बिजनेस को ग्रीन वॉश नहीं करना, यानी कि कोई भी सब्सटेंशिएटेड या मिसलीडिंग क्लेम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस या टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं करना, just for the sake of attaining your customers. Okay, the third one next is the first one step of doing business responsibly is integrity. Integrity means doing the business honestly. Class, integrity को आप ये कह सकते हैं कि बी ऑनेस्ट वाइल डूइंग एनी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने कहा है कि एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी इन बिजनेस इंक्लूड गिविंग फुल वैल्यू ऑफ मनी टू कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स को प्रोडक्ट यानी कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी है वो उनकी डिमांड और वांट्स और रिजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड की जाए। ठीक है। The second step is maintain the quality of products. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को मेंटेन करें, मतलब जो भी मटेरियल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किया गया है वो अच्छी फॉर्म में हो और वो प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम डेफिशिएंसीज और डिफेक्ट्स हों। ठीक है। द थर्ड इज बीइंग ऑनेस्ट इन मेकिंग क्लेम्स अबाउट प्रोडक्ट इन एडवर्टीजमेंट। प्रोडक्ट के बारे में जो भी एडवर्टीजमेंट में क्लेम किया जा रहा है एक्चुअल में भी वैसे ही प्रोडक्ट हो, मतलब कि क्लेम इन एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट और एक्चुअल प्रोडक्ट में डिफरेंस ना हो। ठीक है। द नेक्स्ट इज अवॉइडिंग यूज ऑफ हार्मफुल मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। किसी भी तरह का हार्मफुल मटेरियल जो है वो यूज़ ना किया गया हो जिससे कस्टमर्स को बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़े। जैसे कि क्लास, अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जितना कम पैराबेन्स और सोडियम लोरेट सल्फेट यूज़ किया गया होगा या उन जैसे केमिकल जितने कम यूज़ किए गए होंगे उतना ही स्किन केयर के लिए अच्छा होगा। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज गिविंग ऑल ड्यू डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स टू पोटेंशियल क्लाइंट्स, लाइक प्रोडक्ट्स में कितनी कैलोरीज हैं, उनमें क्वांटिटी ऑफ शुगर कितनी है, फैट वगैरह, इन तमाम की डिटेल क्लाइंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि क्लाइंट्स इन इंफॉर्मेशन से अवेयर होके ये फैसला कर सके कि इस दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर हिज और हर हेल्थ। ओके। फेयरनेस means equitable and equal treatment to all employees, suppliers and customers. Students, fairness means establish moral standards for decision making in business. ठीक है। यानी अपने एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स और कस्टमर्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना। अब यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स बताई हैं। नंबर 1 इज नो फेवरिज्म, नेपोटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन इन हायरिंग, रिटेनिंग एंड प्रोमोटिंग एम्प्लॉयज़। यानी जब भी हायरिंग करनी हो, एम्प्लॉयज़ को प्रमोट या रिटेन करना हो तो अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए, किसी को फेवरिज्म में ना रखा जाए। अब मैं इसमें आपको एग्जांपल दे देती हूँ हमारी अपनी यूनिवर्सिटी की
कि अगर किसी डिपार्टमेंट की एचओडी ने स्टडी लीव पे जाना है, ठीक है, अब उन्हें स्टडी लीव पे जाना है, उनके बाद में किन टीचर ने उनकी सीट को संभालना है, कौन एज अ हेडशिप आएगी, तो हमारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो सीनियरिटी बेस पे ही डिसीजन लेगी। यानी कि वो देखेंगी कि डिपार्टमेंट में और उस डिपार्टमेंट के जितने भी और टीचर्स हैं उनकी ज्वाइनिंग के हवाले से देखेंगी कि ज्वाइनिंग सबसे पहले किन की थी, इसके बाद उनके एक्सपीरियंस के हवाले से देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किन का है, इसके अलावा उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स, उनकी ट्रेनिंग्स के हवाले से देखा जाएगा, फिर सेलेक्ट होगा या होगी वो पर्सन एज अ हेडशिप। ठीक है, अब सेकंड में बात करते हैं पेइंग ड्यू अटेंशन टू कैरियर डेवलपमेंट, यानी कि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग और कैरियर डेवलपमेंट के लिए ऑन गोइंग बेसिस पर एक्टिविटीज़ रखी जाएं। ठीक है, द थर्ड इज प्रोवाइडिंग डिसेंट वर्किंग इन्वायरमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखा जाए, मीन्स एक्शन टेकन इन एडवांस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पॉसिबल डेंजर, फेलियर और इंजरी। The next is providing equal opportunities to all participants to benefit। ठीक है, यानी कि जब भी कंपनी कोई इंसेंटिव स्कीम अनाउंस करे तो ये स्कीम कंपनी में मौजूद तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए हो, ना कि सिर्फ चंद मखसूस लोगों के लिए। ठीक है, ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशनल लेवल जो है वो बढ़ता रहे। इसी तरह क्लास अगर कोई मार्केटिंग स्कीम को ऑफर करे तो वो स्कीम जो है वो तमाम क्लाइंट्स को इससे फैसिलिटेट होने का मौका मिले। ठीक है ना, उसकी फैसिलिटीज़ जो हैं वो तमाम क्लाइंट्स को प्रोवाइड की जाएँ। मीन्स प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल पार्टिसिपेंट्स टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दीज अनाउंस्ड स्कीम्स, यानी कि ठीक है। द लास्ट वन इज हैविंग रिस्पेक्ट फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स, एम्प्लॉयज़ को उनके ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करना, जैसे कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई बात ना करे, फेयरनेस, ठीक है ना, फेयरनेस होगी, डिग्निटी हो गई, इक्वलिटी हो गई, रिस्पेक्ट का ख़ास ख्याल रखा जाए, किसी भी तरह की ह्यूमिलेशन ना की जाए, उनको ह्यूमिलेट ना किया जाए। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये फोकस करना होते हैं कंपनी ने अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द नेक्स्ट इज protection of all stakeholders' interest. If the management of a company works only for profit, it serves the interest of shareholders but not any other stakeholder. Doing business responsibly means doing business for the benefit of all those parties whose interests are connected with the company, namely all stakeholders. ठीक है क्लास, it is important for company management is not just protect the worth of shareholder but also do best work for the benefit of stakeholders। अब stakeholders कौन कौन से हो सकते हैं, like employees, creditors, owners, lenders and societies as well। जैसा कि मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि ये तमाम कंपनीज के stakeholders होते हैं। क्लास, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ को फार्मूलेट करें दैट प्रोवाइड इक्वल केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स, नॉट जस्ट दैट प्रोवाइड इक्वल केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी कि तमाम स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए वो प्रोटेक्ट करे, ना कि सिर्फ शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू। क्लास, आज हमने स्कोप ऑफ CSR के 2 स्टेप्स पढ़े हैं। थर्ड स्टेप और रिमेनिंग पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आप यहाँ तक प्रिपेयर कीजिएगा और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।